Shalom. Welcome back to this devotional in the name of Jesus. शालोम इस डिवोशनल में पुनः आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। It's our privilege to bring this word from the throne room of God. ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर की सिंहासन से हम ये वचन को आप तक के लिए आ पा रहे I हैं। believe that we all are aware we are on a series, हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हम श्रृंखला में हैं and this series is titled as Lessons on Waiting Upon the Lord. और श्रृंखला का शीर्षक है लेसन्स ऑन वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। Thus far that the Lord has been speaking to us marvelously. अब तक के परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से हमसे बात करते आए I हैं। believe that even today He's going to speak to us. मेरा विश्वास ये है कि आज भी वो हमसे बात करेंगे। This is the concluding part of this series. ये इस श्रृंखला का आखिर का भाग I है। pray that it may leave an impact on you in the name of मेरी Jesus प्रार्थना ये Christ. है कि ये श्रृंखला जो है आप पर एक छाप छोड़ जाए मसीह यीशु के नाम से। As always, I want us to open our Bibles to Isaiah chapter 40 verse 31. और हमेशा जैसे हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं आज भी खोलेंगे यशायाह 40:31वां वाक्य। It talks about those who wait on the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings like eagles, and they shall run and not be weary. This is how far that we've seen thus far. And now we're going to look at, I want us to pay attention here. It says, they shall walk and not faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। This particular verse gives us the full description of somebody who walks with the Lord. और यहाँ पे ये Rather, बात who waits upon the Lord. यहाँ पे जो है उस व्यक्ति का वर्णन है जो परमेश्वर की बाट को जोते हैं। Number one, he'll be renewed every single day. और पहली बात तो वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, In his strength, he'll be renewed. अपने बल में वो नया होते जाएंगे Number two, that his case will be like the case of an eagle. और वो बिल्कुल उकाब की नाई होगा। How it soars high in the sky. कैसे उकाब जो है आकाश में बहुत ऊंचाई में उड़ता है, Similarly, he too shall soar. उसी प्रकार से जो यहोवा की बाट को जोता है वो भी ऊंचाई में उड़ेगा। Number three, that he shall run and not be weary. तीसरी बात वो दौड़ेगा और श्रमित न होगा। And fourthly, this particular verse speaks of those who wait upon the Lord as somebody who walk but not faint. चलेगा और थकित न होगा। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, I do not know how many of us tried walking up. हम नहीं जानते हैं कितने लोगों ने चलने का प्रयास किया हुआ है, Because of the pandemic that we are experiencing these days, क्योंकि जो महामारी आजकल है there are people who are walking from Mumbai to as far as Uttar Pradesh. लोग जो है मुंबई से उत्तर प्रदेश तक के चल के जा रहे हैं, Hundreds of kilometers. 100 किलोमीटर। I know that I have seen people who was walked for a long distance और मैंने देखा है लोगों को जो लंबे समय तक के चलते हैं get boils in their feet उनको पाँव में जो है फोड़ियाँ होती हैं and they go through so much of hardship. और उनको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। Walking is not an easy thing. चलना जो है आसान बात नहीं है। And that is how in the olden times people did travel. और पुराने दिनों में पुराने समयों में ऐसे ही लोगों ने यात्रा की। But the word of God says here, वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है when लेकिन you walk, you will not faint. और जब आप चलोगे तो आप थकोगे नहीं। During these days, hundreds of people have died on the road और इन दिनों में हम देखते हैं कि काफी सारे लोग जो है रास्ते में ही मर गए हैं because of the accidents दुर्घटना की वजह से, and also because of the dehydration. और क्योंकि जो है उनके शरीर में पानी की कमतरता होने की वजह से Most of them have fainted because they could not walk. अधिकांश लोग जो है वो चक्कर खाकर गिर गए हैं क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे। But the word of God speaks here, लेकिन वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है those who wait upon the जो Lord परमेश्वर की बात को जोते हैं, and those who are on a course towards eternity. जो अनंत काल की ओर बढ़ चुके हैं, चल चुके हैं, In their walk, that the Lord will not allow them to faint. और उनके चलने में जो है वो थकेंगे नहीं। I want us to open our Bibles now to Genesis chapter 5 verse 21 to 24. पवित्र शास्त्र को खोलेंगे उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 21 से 24। We have an example, excellent example of a man who walked an excellent walk. और यहाँ पे जो है हमारे पास हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिन्होंने बहुत ही उत्तमता के चलन को चला है, An exemplary walk. बहुत ही उत्तमता के चलन को चला है। I pray and I believe that the Lord may speak to us louder than ever through this man's life in the name of Jesus. मेरी प्रार्थना है और मैं विश्वास करता हूँ कि पहले से ज्यादा परमेश्वर जोर से हमसे बात करे इस व्यक्ति के जीवन के जरिए। Genesis chapter 5 verse 21 to 24. I'm reading for us in the NKJV version, and it says, Enoch lived 65 years and begot Methuselah. Verse 22, after he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters.
verse 23. So all the days of Enoch were 365 years, and 24, very important thing it talks about. It says, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 21वें वाक्य से 24वें वाक्य तक पढ़ने का प्रयास करूंगी। तब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मेतुसेला को जन्म दिया, और मेतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। What a glorious testimony for a man. और देखिए कैसी महिमामयी एक गवाही है इनकी। There were men before him, और इनके पहले भी कई सारे पुरुष थे, but Enoch, rose above the standards. लेकिन हनोक जो है वे बिल्कुल ऊंचाई के स्तर में बने रहे, He lived an exemplary life. और उन्होंने बहुत ही एक आदर्श पूर्वक जीवन जिया। The word of God says at 65 और वचन में लिखा हुआ है 65 वर्ष के आयु में that he begot Methuselah. उनको मेतुसेला हुआ, And then he walked with God for 300 years. और फिर लिखा हुआ है कि 300 साल यहोवा के साथ साथ चलते Not रहे। 1 year, not 2 years. 1-2 साल नहीं, 300 years. 300 वर्ष। And 300 years is a lot of time. और 300 वर्ष काफी समय होता If है। you understand what it means to walk in the spiritual, अगर आप समझते हैं कि आत्मिक में चलना इसका क्या मतलब होता है, you are in a walk and I am in a walk. हम और आप जो है चल रहे हैं। There are times that we are in the mountain top and there are times that we are in the valley. समय ऐसा होता है कभी कभार जब आत्मिक रूप में हम जो है ऊंचाई में रहते हैं, और कभी कभार तराई में आ जाते हैं। The testimony of Enoch is this, that he was never in the valley and he only kept on walking upwards with the Lord. और हनोक की ये गवाही है कि वो कभी तराई में नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर के साथ जो है साथ साथ मिलकर वो चल रहे थे। There cannot be a greater achievement than walking with the Lord for not 1-2 years but 300 good years, and to add to it here that he was not, for God had taken him. और ये जो है बहुत ही सुंदर गवाही है कि 300 साल जो है परमेश्वर के साथ साथ हनोक जो है चले, और आगे चलकर लिखा हुआ है कि वो न रहे क्योंकि वो लोग हो गए। I want us to understand one thing. हम एक बात को समझ लेंगे, Enoch's walk was twofold. और हनोक का चलना जो है 2 प्रकार से था। Number one, और पहली बात, his walk was a visible walk. और उनका जो चलना था हर कोई को दिखाई दे रहा था, The world could see that this man is walking with the और Lord. इर्द गिर्द के लोग जो है ये देख रहे थे कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ में चल रहा He था, was the talk of the town. और लोग उसके बारे में बात करते थे, He was the talk among everybody. और हर किसी के बीच में जो है वो एक चर्चा के विषय थे। Everybody looked up to him in awe. और हर कोई जो है बिल्कुल मान सम्मान के साथ उनकी ओर देखते थे। Why? Because he was walking with the Lord. क्योंकि हनोक जो है यहोवा के साथ साथ चलता था। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, can the world see your walk as a visible walk with the Lord? क्या दुनिया जो है देख पाती है कि आप जो है परमेश्वर के साथ में चल रहे हो? What is the testimony of your family concerning yourself? और आपके परिवार की गवाही आपको लेकर क्या है? What is the testimony of your neighbors? आपके आस पड़ोस के लोग जो है आपको देखकर क्या सोचते हैं? What is the testimony of people in the church? कलीसिया में लोग आपको देखकर क्या समझते हैं? What is the testimony of people who work with you? जो आपके साथ काम करते हैं उनकी क्या गवाही है आपको If लेकर? a walk is a visible walk, अगर हम जो है जिस तरह से परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, That- हर कोई के दिखाई पड़ता है, that walk is enough to bring many to the Lord. सो वो चलन जो है जब लोग देखते हैं यहोवा के पास आ जाते हैं। फिर This man was somebody who was waiting on the Lord, हनोक जो है परमेश्वर की बात को जोता था, and because he was waiting for the Lord, waiting upon the Lord, क्योंकि परमेश्वर की बात को जोता था, that his walk was a perfect walk. और उनका चलन जो है, उनका चलना जो है बिल्कुल सिद्ध था यहोवा के His सामने, walk was a visible walk. और दिखाई पड़ता था हर किसी को। Number two, दूसरी बात, his walk was a vocal walk. और उसका जो चलना था वो उसके बारे में वो बोलता था, I चर्चा do not करता know था। how many of us understand. Verse 21 says, Enoch lived 65 years and begot Methuselah. लिखा हुआ है कि 65 साल के वर्ष के हुए हनोक, और उन्होंने मेतुसेला को जन्म दिया। You know what's the meaning of Methuselah? आप जानते हैं मेतुसेला का क्या The मतलब है? meaning of Methuselah is, मेतुसेला का मतलब है at his death
flood shall come. कि इसकी मृत्यु पर जो है प्रलय आएगा। Actually, Enoch did not name his son. हनोक ने अगर देखा जाए तो अपने बेटे का नाम नहीं रखा। He turned the name of his son as a prophecy. उन्होंने अपने बेटे के नाम को मानो एक भविष्यवाणी, एक नबूवत करते हुए रखा। Whoever called Methuselah as Methuselah, और जिस किसी ने मेतुशेलह को बुलाया मेतुशेलह करके, they all knew at his death the flood will come. वे सारे ये बात को जानते थे कि जब ये मरेगा तब प्रलय आ जाएगा। I'm telling you the truth. मैं आपसे सत्य कहता हूँ, Your life and how vocal that you are about God is very important. देखिए आपका जीवन और आप परमेश्वर को लेकर कैसे बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। Your walk should speak. और देखिए आपका चलना जो है वो चलने ने बात करना है। That walk should be backed by the talk. और वो जो आपका चलना है, चलने के मुताबिक जो है आपकी बोली भी होनी चाहिए। But unfortunately these days we only hear people talk. लेकिन दुर्भाग्यवश इन दिनों में हम सिर्फ लोगों को बोलना देखते हैं। There is no evidence of walk with the talk. हम जो है उनको बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बोलते हैं उसके अनुसार चलते नहीं हैं। This man was a prophet. ये व्यक्ति हनोक जो है वो एक भविष्यवक्ता थे। And he was prophesying and he was warning people until the day that he was taken away. और वो जो है भविष्यवाणी कर रहे थे और वो लोगों को आगाह कर रहे थे जब तक कि उनको उठा लिया गया। His sight was set upon God. और उनकी नजर जो है यहोवा पर बनी थी। Because his sight was set upon क्योंकि God, उनकी नजर यहोवा पर बनी थी। that he did not miss walking with the Lord. सो परमेश्वर के साथ साथ वो चलते रहे And God was faithful. और परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहे। Faithful enough not to allow him to faint or fall. और परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहे और उन्होंने गिरने नहीं दिया, उन्होंने चक्कर खाने नहीं दिया। My brothers, my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, how blessed that you are today. आप आज कितने आशीषित हैं। Enoch did not know Jesus Christ. हनोक यीशु मसीह को नहीं जानते थे। Rather, the revelation of Jesus was not yet there. और प्रकाशन यीशु मसीह का तभी नहीं था। Enoch did not have the Spirit of God dwelling inside him. और हेनोक के अंदर जो है पवित्र आत्मा निवास नहीं करते थे। You have the revelation of Jesus. लेकिन देखिए आप यीशु मसीह के प्रकाशन को पाए हुए व्यक्ति The हैं। revelation of Yeshua is so very important. You will not understand as long as you are on earth. और देखिए यीशुआ का प्रकाशन जो है कितना महत्वपूर्ण है, हम नहीं समझेंगे जब तक हम इस पृथ्वी में जिंदा As हैं। long as you are on earth, you will not be able to understand. But it's only when you get to heaven, you will know the power of the name of Yeshua. और जब तक कि हम पृथ्वी पर हैं, हम पूरी रीति से यीशुआ के सामर्थ को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम यीशुआ के सामर्थ को समझ पाएंगे। You have the revelation of Yeshua. यीशुआ का प्रकाशन आपके जीवन में है। I have the revelation. We have the revelation of Yeshua. मेरे जीवन में यीशुआ का प्रकाशन है, हमारे जीवन में यीशुआ का प्रकाशन है। Most importantly, सबसे महत्वपूर्ण बात, His Spirit, our Father's Spirit, resides inside us. और उनकी आत्मा, पवित्र आत्मा, पिता की आत्मा जो है हमारे अंदर निवास करते हैं। What else that you can ask for? और क्या चाहिए हमको? He is an ever-present help that the Lord has given to you. वो उपस्थित मददगार है जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया हुआ He is है। a comforter. वो सांत्वना देने He is वाले a counselor. पवित्र आत्मा है, वो सलाह देने वाले He is an पवित्र आत्मा amazing है, guide. वो हमारी अगुवाई करने वाले He पवित्र आत्मा directs है, you. वो हमको दिशा देते He हैं, brings the heart of God to you. परमेश्वर के हृदय को हम तक ले आते हैं पवित्र आत्मा, He will strengtन you. वो हमको बल प्रदान करते He will हैं, put His power inside you. वो उनका सामर्थ हमारे अंदर उंडेलते I हैं। can go on and on and on and on. मैं जो है बोलता रह सकता हूँ पवित्र आत्मा के विषय My में। tongue will never cease speaking about the Holy और Spirit. देखिए पवित्र आत्मा के बारे में जब हम बोलते हैं तो जबान थकती नहीं है। When you have Him in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, do you know how powerful you have become? आप जानते हैं कि कितने सामर्थ्यशील आप हो गए हैं। When you have become so जब powerful, आप इतने सामर्थ्यशील हो गए हैं, the revelation of the Lord, यीशु का प्रकाशन आप में है, and then the Holy Spirit residing inside you. पवित्र आत्मा आपके अंदर जो निवास करते हैं, How your walk should be, how our walk should be. हमारा चलना उनके साथ कैसे होना चाहिए, Think about it. इसके बारे में सोचिएगा। Hallelujah. हालेलुया। But those who wait upon the Lord, वे लोग जो परमेश्वर की बात को जोते हैं, the Lord promises that He will not allow them to faint और यहोवा ये वादा करते हैं कि वो श्रमित नहीं होंगे, through the inspiration of the Holy Spirit, वो थकेंगे नहीं पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार। through the anointing that is placed upon me. और जो अभिषेक मुझ पर है, वो अभिषेक के वजह से I prophesy and say that you
will not faint in your walk with the Lord in the name of Jesus मैं Christ. भविष्यवाणी करते हुए ये कहता हूँ कि आप जो परमेश्वर के साथ में चलना शुरू कर चुके हैं, आप जो है थकेंगे नहीं मसीह यीशु के नाम It से, shall be well with you. और आपके साथ में सब कुशल होगा, You should excel by the help of His Spirit और उनकी आत्मा के मदद से आप उत्तम करोगे in the name of यीशु Jesus मसीह के Christ. नाम से। With these assurances in your heart, और ये विश्वास अपने हृदय में रखते हुए go out and do exploits for the Lord. आप जाइएगा दिन में और परमेश्वर के लिए अद्भुत कामों को May कीजिएगा। the Lord be with you. परमेश्वर आपके साथ में बने रहे, Stay blessed. आशीषित रहिएगा।